Welcome to lecture 13 of Vaad Prativaad and Samvaad series. I am Deepak Prakash. In last lecture I discussed about article 16. अगर नहीं देखा है go and watch article 16. So lecture 11 and 12 both deals with article 16 comprehensively in minor details. I have covered many of the important cases which have not been covered even by the basic book sources like Lakshmikant. There I have discussed in detail Indra Sahni case, Ram Singh case, Jayashree Lakshman Rao Patil case, M. Nagaraj case, 77th Constitutional Amendment Act, 81st Constitutional Amendment Act, 85th Constitutional Amendment Act, difference between horizontal and vertical reservation, then T. Muralidhar Rao versus State of Andhra Pradesh and many more. So it is important that you understand article 16 in detail. अच्छे से जाकर समझिएगा क्योंकि confusing है. 15 and 16 both are confusing. Specifically now जो यूपीएससी के क्वेश्चंस आ रहे हैं इस साल भी देखेंगे तो many questions could have been dealt using cases. So सुप्रीम कोर्ट का केसेस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट नाउ फॉर GS2. GS2 का जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं तो लेट मी टेल यू वन थिंग, कभी भी यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है, जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट करती है कि आप जब आंसर्स दें तो उसको साथ में बैकअप करें किसी केसेस के साथ. So it would always be advisable for you if you really want to make your answer holistic in GS2 answers, if you want to make answers holistic, please provide cases. Coming to today's lecture, today I am going to discuss articles 17 and 18 in minor detail. Then Jayashree versus Government of India and Dev Rajya versus B. Padmanath case. Very important, दोनों important case है. Third, PUDR versus Union of India case. Untouchability, is it also applicable? Can it also be enforced against private individual? वो वहां से पता चलेगा. Then Dr. Subhas Kasinath Mahajan case versus the state of Maharashtra, वो देखेंगे. Then section 18A to the SC and ST Prevention of Atrocities Act, उसके रिस्पॉन्स में क्या पार्लियामेंट करती है. Then पृथ्वीराज चौहान case and then we'll also see the difference between title and award, and then ultimately in बालाजी राघवन केस, जो कि बेसिक सोर्सेज में बहुत सारी चीजें नहीं कवर की हुई है. दैट्स व्हाई आई हैव डन दैट. कमिंग टू आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एबोलिशन, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17. आर्टिकल 17 के बारे में बात करते हैं और बेसिक से स्टार्ट करते हैं. नाउ एक पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आना चाहिए, कभी भी यूपीएससी पूछ सकता है, is untouchability defined in constitution? And the answer is no. Untouchability को डिफाइन कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं किया गया है. That's the first thing. Second, suppose there is a restriction of movement on people who are suffering from some sort of contiguous diseases. तो क्या would it come under Article 17? And the answer is no. कॉन्टेजियस डिजीज के कारण उनको रोका जा सकता है, वो आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी डिफाइन जो होता है जिस तरीके से उसमें नहीं आएगा. तो अनटचेबिलिटी डिफाइन कैसे होता है, दैट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड. सो इन जयसी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जयसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट है. एंड अनदर इज देव राजिया वर्सेस बी पद्मनाथ केस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, वेयर द वर्ड अनटचेबिलिटी has been defined by High Court. तो High Court बोलता है कि untouchability in the fundamental right chapter, वहां पे untouchability has been given under inverted comma. That means untouchability should not be mean to have literal interpretation. Untouchability should not be defined literally. Literally उसका मतलब नहीं लेना है. Rather, untouchability should be understood as a type of a social institution that has segregated certain sections of people. So it is a historical practices that have deprived certain sections of people. It is a historical practices that have deprived or that has been used, and many people have been discriminated against because of untouchability as a social practice.
सो वहां पे हाई कोर्ट बोलता है कि इट रेफर्स टू द सोशल डिसेबिलिटी imposed on certain persons because they were born in some particular caste or some particular group. So since they are born in a specific backward class, so they have been historically discriminated. तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन यहां पर जो है, अनटचेबिलिटी जो है, बेसिकली इट इज टॉकिंग ऑफ कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी, इसका और कोई मतलब नहीं है. सो इट डज नॉट कवर एनी सोशल बायकॉट ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल. मान लो एक छोटा सा एग्जांपल आई एम गिविंग यू. से इन अ ब्राह्मणिकल विलेज एक ब्राह्मण का बच्चा किसी और कास्ट की लड़की से शादी कर लेता है एंड द अदर ब्राह्मण पीपल दे डिसाइडेड टू बायकॉट दैट पर्टिकुलर फैमिली. वहां सोशल बायकॉट करते हैं, मैरिज में नहीं बुलाते हैं, उसके यहाँ खाना नहीं खाते हैं. दैट वुड नॉट कम अंडर आर्टिकल 17. तो यहां पे अनटचेबिलिटी का मतलब बहुत ही स्पेसिफिक है. दैट इज untouchability means that historical practices that has been used against certain persons who were taken birth in a particular caste. ठीक है. तो अभी मैंने जैसे बताया कि अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, हाई कोर्ट्स ने बताए हैं कि अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होगा. सो अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 का जो आप आर्टिकल 17 को जाकर पढ़ेंगे वो बेसिकली इट एबोलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. तो एबोलिशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी मीन्स अगेन दैट हिस्टोरिकल थिंग इट इज टॉकिंग ऑफ. जो सोशल इंस्टीट्यूशन था अनटचेबिलिटी, उसके एबोलिशन के बारे में दे आर टॉकिंग अबाउट. देन एंड डिक्लेयर्स इट एज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द लॉ. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी पनिशमेंट फॉर अनटचेबिलिटी. कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई पनिशमेंट नहीं दिया है, बट इट हैज गिवन द पावर टू पार्लियामेंट to make law using Article 35. So using Article 35, Parliament has already made a law called Untouchability Offences Act. That was in 1955, which made untouchability as non-cognizable and bailable offense. अब नॉन कॉग्निजेबल भी था और साथ में बिलेबल भी था. सिंस इट वॉज नॉन कॉग्निजेबल, सो इट वॉज लेस ऑन अस्ट्रिंजेंट साइड. अस्ट्रिंजेंसी नहीं थी, people were easily getting bail. So act was criticized because it was not having any impact on like life of those people who were discriminated against. Untouchability rampant tha. So parliament later on, in order to make it stringent, parliament later on changed it. It was renamed as Protection of Civil Right Act 1956 in 1955 in 1976 रीनेम किया गया और उसका नया नाम जो बना वो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, विच मेड द लॉ मोर स्ट्रिंजेंट. हियर अनटचेबिलिटी एज अ प्रैक्टिस. सो बेसिकली the untouchability as a practice, it was made cognizable and non-billable. अगर आप अनटचेबिलिटी करते हैं तो उस केस में इट वॉज मेड कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल. कोर्ट भी आपको बेल नहीं देगी अगर इफ यू आर प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी, एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो इंक्रीज पनिशमेंट. साइमल्टेनियसली लेटर ऑन क्या हुआ कि फर्दर इन पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसको एशियाड प्रोजेक्ट वर्कर्स केस भी कहते हैं, 1982 में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो. सो इवन इफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल इज प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी, तो ये राइट अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल टू इन PUDR केस, पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, जिसको एशियाड वर्कर्स राइट केस भी कहते हैं. So it is against private individual also. Further, the parliament subsequently enacted the SC and ST Prevention of Atrocities Act 1989. अब उन्होंने एक स्पेसिफिक एक्ट को बनाया, SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989, which was amended in 2015. इसको अमेंड किया गया 2015 में, and some new clauses have been added to make it more stringent. अब क्या क्या उसमें क्लॉज ऐड किया गया है उसके बारे में समझते हैं. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वन, लाइक
forcing SC और ST person from voting or not to vote. कोई SC ST person जो है उसको आप वोट नहीं देने कह रहे हो, then that would be covered under Atrocities Act of 1989. If you are compelling an SC or ST person from to perform say manual scavenging or menial labor, that would also be covered under it. If any public servant, if he is neglecting his duty, public servant must be from non-SC or non-ST background. So if neglect of duties by a non-SC or non-ST public servant in cases related to SC or ST, such as refusal to file FIR or illegally occupying a land belonging to SC or ST. At the same time, it also talks about formation of a special court. A special court बनाना है, which would basically see all the cases related to atrocities. अभी ये सब चल ही रहा था, then suddenly in 2018 something happened. 2018 में कुछ होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस. उस केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दो चीज ढंग से समझना है. फर्स्ट थिंग, सुप्रीम कोर्ट सेड देयर इज नो कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन ऑन एंटीसिपेटरी बेल इवन इन केसेस ऑफ SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट. सो एंटीसिपेटरी बेल लिया जा सकता है, प्री अरेस्ट बेल यू कैन टेक. दैट्स द फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड वॉज कि इफ in judicial scrutiny, if it is found that complaint to be prima facie malified, then that complaint itself can be quashed. There was huge uproar against this. पूरे कंट्री में इसके खिलाफ अप्रूवर हुए एंड पार्लियामेंट रिस्पॉन्डेड by making a amendment to prevention of atrocities act. उसमें अमेंडमेंट किए, दे इनकॉर्पोरेटेड सेक्शन 18A. सेक्शन 18A क्या है उसको समझना है. फर्स्ट थिंग, इट रीअफर्म दैट सेक्शन 438 ऑफ CRPC, 438 जो है CRPC का, विच टॉक्स अबाउट प्री अरेस्ट बेल, एंटीसिपेटरी बेल शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट. तो वहां पे आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा ही नहीं सकते हैं, प्री अरेस्ट बेल आप ले ही नहीं सकते हैं. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नीडेड फॉर फाइलिंग ऑफ FIR इन प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट. तो कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, अगर कोई SC ST का बंदा जाके कंप्लेन करता है, FIR रजिस्टर कराना चाहता है, सो देयर इज नो एनी नीड फॉर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी. FIR हैज टू बी रजिस्टर्ड देन एंड देयर. यहां तक कोई प्रॉब्लम है? देन जब ये अमेंडमेंट आया, दिस वाज अगेन चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट इन पृथ्वीराज चौहान केस. सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट सेड कि सेक्शन 18A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट एज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वैलिड. बट एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड कि हाई कोर्ट विल हैव एन इनहेरेंट पावर टू ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल in cases in which prima facie an offence under the Prevention of Atrocities Act has not been made out. तो अगर प्राइमा फेसी हाई कोर्ट को ये लगता है कि कोई ऑफेंस हैज नॉट बीन कमिटेड अंडर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, देन हाई कोर्ट जो है वो रिलीफ दे सकता है, एंटीसिपेटरी बेल कैन बी गिवन. सो सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन थोड़ा लीवे टू हाई कोर्ट. हायर कोर्ट को लीवे मिल गया. दैट इज द, मैं अभी तक का जो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस था 2020 तक, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट और उससे रिलेटेड केसेस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड. कमिंग टू आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. आर्टिकल 18 अब समझना है कि व्हाट इज द बेसिक प्रेमाइसेस. टाइटल को आखिर एबॉलिशन के लिए क्यों गवर्नमेंट उस समय या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, व्हाई दे हैव डिसाइडेड टू एबॉलिश द टाइटल. अगर आपने आर्टिकल 326 पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है गो एंड रीड इट. आर्टिकल 326 promises political equality, one person one vote.
So in order to ensure social equality, then Constituent Assembly decided to abolish titles. अब ये titles होते क्या थे? So basically let me tell you one thing. It is important to understand, क्योंकि important जो basic sources हैं यूपीएससी के, उसमें टाइटल और अवार्ड का डिस्टिंक्शन कवर नहीं है, जो कि मैं अभी कवर बताऊंगा आप लोगों को. लेकिन उसके पहले समझिए कि why this title thing came into being. टाइटल के लिए इतना ज्यादा दिक्कत क्या था? सो आर्टिकल 18 आप ढंग से पढ़ेंगे. 18 में 4 सब क्लॉज है, 1, 2, 3, 4. All 4 sub clause are important. So Article 18 sub clause 1 says a state is prohibited from conferring any title. ये exact statement है. A state is prohibited from conferring any title except military or academic achievement. So a state को prohibit किया गया, कोई टाइटल उनको नहीं देना है. सो सबसे पहले समझो कि कॉलोनियल टाइम में कैसे टाइटल्स दिए जाते थे. राय बहादुर, नाइटहुड, दीवान साहेब, दीवान बहादुर. दीज टाइटल्स वर गिवन बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट टू दोज पीपल जिनको वो लगता था, जो उनको लगता था कि वे उनके अपने हैं, तो उन टाइटल्स को दिया जाता था. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कस्ड इट and they decided कि these title should not be bestowed upon anyone because it would not allow social equality to be realized. Social equality नहीं आएगा, और social equality को realize करने के लिए जरूरी है कि ये सब titles को हम हटा दें. So, but at the same time Constituent Assembly also discussed about the same thing कि whether a state can award or not. So Constituent Assembly says a state is free to recognize academic achievements and military distinction. Academic achievements, आपको PhD की डिग्री दे दी गई, मिलिट्री ऑनर आपको दे दिया गया, लाइक परमवीर चक्र, महावीर चक्र. दोज आर नॉट टाइटल्स, वो टाइटल नहीं है. तो मैं उसके आगे बढ़ता हूं, लेकिन उसके पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन अवार्ड एंड टाइटल. तो पहला चीज अवार्ड में समझो. Award is conferred by state without any discrimination on the basis of race, caste, religion, sex, place of birth, something like that. But title में ऐसा कोई भी may not follow such rule. That's the first thing. Second, award में basically awardee is prohibited from using that as suffix or prefix. But in title, awardees are basically title holders are encouraged to do so. So that's a basic distinction. कहीं कोई sources में covered नहीं है. That's why I'm explaining it to you guys. तो उसको अच्छे से कर लेना है. देन इसमें सबसे जो लैंडमार्क केस है दैट इज बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. इसमें बालाजी राघवन गोज टू सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग नेशनल अवार्ड. नेशनल अवार्ड को वो आर्ग्यू करते हैं कि नेशनल अवार्ड शुड बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. दोज अवार्ड लाइक भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण शुड नॉट बी गिवन. तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड नेशनल अवार्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वैलिड. सुप्रीम कोर्ट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट सेड कि नेशनल अवार्ड आर नॉट टाइटल. सो देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन टाइटल एंड नेशनल अवार्ड. आर्टिकल 18 ओनली प्रोहिबिट अ स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल, नॉट अवार्ड. So a state is not conferring any title. National award are something different. Even theory of equality recognizes merit. So these awards are given on the basis of certain merit. However, at the same time Supreme Court said these should not be used as prefix or suffix. So prefix और suffix में use नहीं करना है. Rest of the things are okay. So national award can be given by state, by Indian government. So award like Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Shri, Padma Bhushan are constitutional and valid. So I have brought you to the most relevant constitutional cases. I have already covered, सारे वो cases covered हैं. Then at the same time I have exhaustively covered article 17 and 18 along with various case laws. So in next lecture I'll be discussing article 19. If you don't want to miss any of the important upload, kindly do like,
share and subscribe. Happy learning. Take care.